Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. So today we will discuss about the chapter Gravitation, which is of class 9th. Okay, so as you all know, we have to discuss about the gravitation chapter. So before that we have to learn about what is gravitational force, right? I will tell you about this. Earth attracts all things towards it through an unseen force of attraction. This force of attraction is called as gravitation or gravitational pull. So, whenever we throw an object upward, okay, it reaches a certain height and then fall down on the Earth's surface. So, why it always fall towards the Earth's surface? Because there is some force of attraction, and this force of attraction is called gravitational force. Okay, I hope this is clear to all of you. Okay, now the first topic is a universal law of gravitation. So what is universal law of gravitation? Newton's law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object by a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So न्यूटन ने क्या बताया इसमें कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी इस यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कोई फोर्स है जो जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मास. मतलब जैसे दो बॉडी हैं, एक का मास है m, कैपिटल M, एंड अदर मास इज स्मॉल m. So force is directly proportional to the product of the mass, okay, and inversely proportional to the square of the distance between them. For example, इन दोनों के बीच जो distance है that is d. So force is inversely proportional to the square of distance between the object. Okay. So when we remove this directly proportional sign, there comes an capital G, which is universal gravitation constant. Okay. So क्या बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so वो जो हमारी कैपिटल जी आया था वहाँ पे, वहाँ उसकी वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square. Okay, so this capital G value was given by Henry Cavendish in 1798. Okay, so there these are two bodies, m1 and m2, and these are the forces f1 f2. Okay, and r is the distance between the objects. So here is the formula that f is equal to g m1 into m2 upon r square. Okay, r is the distance between the objects. Now the next topic is acceleration due to gravity. Okay, force acting on a body due to gravity is given by force क्या formula है, F is equal to mg, where m is the mass of the body and g is acceleration due to gravity. Okay, I hope acceleration is clear to all of you. Okay, so F is equal to mg. Also from the last slide we come to know that F is equal to capital G m into m upon r square. Okay, so here is F value is mg and also F is equal to this, so we can easily equate the both expressions. Okay, so we can write mg is equal to this, capital G mm upon r square. Okay, so small m is cancelled by the small m here, so we get the formula of acceleration due to gravity, that is a small g is equal to capital G upon m upon r square. Got it? इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चलता है कि mass of the body doesn't affect the value of small g. Okay, so when we put the values of capital G, that is 6.673 into 10⁻⁻11, right, and capital M, that is the mass of the earth,
which is 6 into 10 to the power 24, and radius of the earth is 6 into 10 to the power 6. Okay, so we get the value of small g, which is 9.8 meter per second square. Got it? We put the values in this equation. Okay, so here's a note. What is note? This is the acceleration due to gravity and the acceleration felt by any freely falling body towards the earth. फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो भी एक्सेलरेशन फेल करती है वो ही है ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी कीप चेंजेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ अर्थ्स रेडियस। ये चेंज हो सकती है क्योंकि अर्थ का रेडियस फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ है और मानो इस जगह से कुछ और हो सकता है, तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Now the centripetal force, okay. When a body undergoes circular motion, it experiences a force that acts towards the center of the circle. This center seeking force is called centripetal force. अब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, वो चल रही है सर्कुलर ही मोशन में चल रही है, ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो उसको एक फोर्स फील होगा जो कि किसकी तरफ होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का जो सेंटर होगा, तो इसी सेंटर सीकिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। अब हमें पता है कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो किस वजह से करता है, किस फोर्स की वजह से, सेंट्रिपिटल फोर्स, विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जो कि क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून सीजेस, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तब क्या होगा, द मून विल कंटिन्यू टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अगर ये नहीं होगा तो वो जो होगा आपका मून, वो स्ट्रेट लाइन में लाइक टेंजेंट हो जाएगा ऑर्बिट पे। टेंजेंट क्या होता है कि सर्किल से एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल एंड मोशन. When an object is under free fall, acceleration due to gravity is constant at g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास. अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जी की वैल्यू क्या होती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है. डेट इज, इसका क्या मतलब है कि चाहे ऑब्जेक्ट चाहे बड़ा हो या फिर क्या हो, छोटा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा. ओके, देखिए यहाँ लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर फ्री फॉल. ओके, all three equations of motion are valid for freely falling object as it is under uniform motion. अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थ्री जो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियोज आप मेरी देख सकते हैं चैनल पर, मोशन पर, ठीक है, तो वहाँ आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है. साइन ऑफ कन्वेंशन टूवर्ड्स द अर्थ, जब बॉडी अर्थ के टूवर्ड्स आएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और अर्थ से दूर जाएगी अवे फ्रॉम अर्थ तो ये जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू अगर अर्थ के, वो बॉडी अर्थ के टूवर्ड्स आ रही है तो पॉजिटिव लेंगे, और अर्थ से दूर जा रही है अवे फ्रॉम दैट, दैट इज जी की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेट एंड मास. So what is the difference between weight and mass? Okay, so mass क्या रहता है, mass of an object is the measure of its inertia and is constant throughout the universe. mass क्या है, measure है inertia का, और ये सॉरी थ्रू आउट द यूनिवर्स आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, राइट. बट वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस. वेट आपका डिफरेंट हो जाता है क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, हमेशा चेंज करती रहती है, राइट. सो वेट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट. जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज वेट. ओके, वो हमारा मास नहीं है, वो वेट होता है, ठीक है. तो वेट का क्या फॉर्मूला है आपका, आपको भी पता है मैंने कि वेट फोर्स ही होता है. फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, F इज इक्वल टू एम जी. तो आप फोर्स की जगह वेट भी लिख सकते हैं क्योंकि वेट एंड फोर्स आर द सेम थिंग. W इज इक्वल टू एम जी. अब जी की जब वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेट भी आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट. नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑन अर्थ. जो भी आपका अर्थ पर वेट है उसका 1/6 टाइम्स वहां पर क्या होगा, वो आपका वेट होगा मून पर, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 36 है तो मून पर कितना हो जाएगा, 36 यानी 6 kg हो जाएगा, राइट, सॉरी न्यूटन.
या ये और मैंने आपको पता भूल गई, सॉरी गलती हो गई। मास आपकी ऐसा यूनिट क्या है आपकी केजी है, राइट, और वेट की क्या है न्यूटन, क्योंकि वेट हमारा क्या है फोर्स है। नाउ थ्रस्ट एंड प्रेशर। Force acting on an object perpendicular to the surface is called force, is called thrust. वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली है किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से, दैट इज थ्रस्ट। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कितने पर यूनिट एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज सॉरी थ्रस्ट है, दैट इज प्रेशर। ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ लार्जर। अगर स्मॉलर एरिया पे अप्लाई हो रहा है फोर्स तो वो ज़्यादा प्रेशर उसमें रहेगा, और अगर लार्जर एरिया पे है तो फोर्स कम रहेगा, राइट। नाउ pressure in fluids. Pressure exerted by a fluid in a container is transmitted undiminished in all direction on the walls of the container. Now आप ये बहुत ही फेमस है, डेट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या होता है? वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है वो हमें किससे पता चलता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, राइट। Upward force exerted by a fluid on an object is known as upthrust or buoyant force. जो भी अपवर्ड फोर्स लगता है फ्लूइड से एक्सर्ट होता है ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ बायंसी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बायंसी का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड की डेंसिटी पे। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फ्लूइड, फ्लूइड से डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम है, राइट, तो वो फ्लोट करेगा ऑब्वियसली। और इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फ्लूइड, और फ्लूइड से अगर ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा, ठीक है, फ्लोट नहीं करेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्या बता रहा है कि जब भी हम कोई बॉडी को इमर्स करते हैं फ्लूइड में, या तो हम फुल्ली उसको इमर्स करते हैं या पार्शियली, तो उस पर वो क्या होता है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स रखती है जो कि किसके इक्वल रहती है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करता है उसी के इक्वल रहती है अपवर्ड फोर्स। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, केपलर्स ने 3 लॉज दिए हैं। ओके, सो वन बाय वन हम रीड करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, all the planets revolve around the sun in elliptical orbits having the sun at one of the foci. प्लैनेट्स क्या कहते हैं? सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहे हैं, ना कि सर्कुलर में। इलिप्स होता है वैसे, ठीक है। इलिप्स में क्या होता है? 2 फोकस रहते हैं, तो सन क्या होगा? एक फोकस पे रहता है उस पर, ठीक है। ये केपलर ने बताया। सेकंड लॉ क्या है? रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन to the planet sweeps out equal area and equal interval of time. जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, ठीक है, तो वो क्या हैगा कि इक्वल एरिया स्वीप करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ऑब्वियसली अब ऐसे इलिप्स है, फॉर एग्जांपल ये देखिए बैकग्राउंड में जैसे बना हुआ है ना, तो ये इलिप्टिकल है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सन है और ये ऑर्बिट में यहाँ प्लैनेट है, तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ करी, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है? प्लैनेट यहाँ दूर हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर आ गया प्लैनेट तो यहाँ पर क्या है? पास हो गया, लेकिन वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Kepler's third law, not motion, it's planetary motion. Okay, तो थर्ड लॉ क्या है? ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एज इट्स फोकाई। ओके, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे क्या बता रहा है? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। क्यूब किसका? डिस्टेंस का है प्लैनेट का फ्रॉम द सन, सन से प्लैनेट का जितना डिस्टेंस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम पीरियड के। So this is the third law of Kepler's planetary motion. Okay, so yeah, that's all for today. I hope आपको समझ आया होगा, right? So
सो इफ आपका जो भी कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Whiteboard Online, and I hope you enjoyed this video. Thank you so much.